Welcome back, champions. So, children, after completing the first chapter, that was nature and significance of management. Now, you all must be well aware that each and every organization, each and every single organization has its own set of objectives, goals, and targets. And management, through its continuous efforts, directs and motivates the individuals to achieve the desired goals or objectives. राइट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट क्या कर रही है वहाँ पे? मैनेजमेंट इज गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट इज मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड so that they can achieve the organizational goals. So children, in this chapter, principles of management, we will study about the principles and different techniques given by Mr. Henry Fayol and F.W. Taylor. But before proceeding further, children, we need to understand the concept of principles of management, right? So the principles of management are basically general guidelines for decision making and behavior of the manager. Manager को कैसे react करना है, how the manager should react और how he should behave in a given situation. Through these guidelines जो है उसको help मिलती है. So management principles help managers to perform their functions or their duties effectively and efficiently. Right, मैंने पहले भी previous class में भी I told you these two terms are very important, effectively and efficiently, और बार बार मिलेगी. So management principles helps managers to perform their functions effectively and efficiently. Now, children, if I ask you, like, what is the difference between principles of management and techniques of management? How you will differentiate? Okay. So, principles of management, they are basically the guidelines, we all know this. Whereas techniques are the procedures or methods. Techniques are the procedures or methods which need to be followed to accomplish desired goals, right? To achieve the desired goals. तो आप जो टेक्निक्स यूज कर रहे हो, जो आप मेथड्स यूज कर रहे हो टू अचीव द गोल, उसको हम बोलते हैं टेक्निक्स. ओके. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वैल्यूज. नाउ वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज लाइक मेरी वैल्यू आई डोंट लाई, राइट? सो वैल्यूज, हाउ वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल्स, गाइडलाइन से कैसे डिफरेंट है? सो वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल ऑफ इंडिविजुअल, राइट? आप जो है वैल्यूज सबके पास ही होती हैं. वेयर एज प्रिंसिपल्स, दे आर बेसिकली द गाइडलाइंस फॉर द ह्यूमन बिहेवियर, कि कैसे उसको एक मतलब सिचुएशन में कैसे उसको रिएक्ट करना चाहिए. और जो वैल्यूज होंगी वो इनबिल्ट होगी, आपके अंदर ऑलरेडी वो होंगी वैल्यूज. सो नाउ let's see the learning objectives. After studying this chapter, you should be able to state the meaning, nature and significance of principles of management, explain Fayol's principles of management, and explain Taylor's principles and techniques of scientific management. So children, in this chapter, we will study about the contributions given by Mr. Fayol, Henry Fayol and Taylor. And Taylor, F.W. Taylor was an American mechanical engineer. Henry Fayol was a French mining engineer. Taylor gave the concept of scientific management, whereas Fayol emphasized administrative principles. जो managers के लिए जो principles है वो Mr. Henry Fayol ने दिए थे 14 principles. And children, from your एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट. प्लस जो हम प्रोजेक्ट वर्क करेंगे सीबीएसई का, वो भी इस चैप्टर में से कुछ बच्चे करेंगे. दैट पार्ट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. बट बेसिकली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, फ्यूल, हेनरी फ्यूल की जो प्रिंसिपल्स थे दे वर बेसिकली फॉर मैनेजर्स, और जो F.W. टेलर ने जो दिए थे वो शॉप फ्लोर लेवल के प्रिंसिपल्स थे. फर्स्ट वी विल डिस्कस फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स. So let's start with nature of principles of management. By nature is meant qualities and characteristics of anything, right? तो principles of management की क्या qualities हैं, क्या features हैं, that we are going to see now. The first point is universal applicability. Universal applicability means जो universally हर जगह जिसको आप जो है apply कर सकते हो. So we can say that management principles are universal in nature, right? These principles are universally applicable everywhere, like it's business or non-business organizations, small or large business organization, even this is applicable at all levels and at all times. Say for example, there is one principle given by Mr. Henry Fayol,
which is division of work. Division of work is basically when you divide the work according to qualification or experience of the person. So division of work is basically applicable in big organizations, right? जहाँ पे strength ज़्यादा होगी, जहाँ पे मैन पावर ज़्यादा होगी. Whereas in case of small organizations जहाँ पे मैन पावर ज़्यादा नहीं है, मे भी हो सकता है डिविजन ऑफ वर्क जो है वहाँ पे हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाए. So it depends कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बट अदरवाइज दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. One more example we can take, like there is one more principle given by Mr. Henry Fayol, centralization and decentralization. So centralization का मतलब क्या होता है, पावर जो है वो एक ही जगह पे होती है. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर जो है, अथॉरिटी जो है वो आपने ट्रांसफ़र कर दी है अलग अलग ब्रांच ऑफिस में. तो अगेन सेंट्रलाइजेशन कहाँ पे होगी, जब जो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होगी. एंड डिसेंट्रलाइजेशन लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट रिलायंस और टाटा, वहाँ पे क्या होगा, जो पावर होगी, अथॉरिटी होगी, वो डिसेंट्रलाइज उनको करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज देयर विल बी टू मच बर्डन ऑन द मैनेजर्स विल बी ओवर बर्डन. अगर सब कुछ उन्हीं को देखना है एक ही जगह पे बैठ के, फॉर एग्जांपल रिलायंस की अगर 50 ब्रांचेज हैं और एक जो उनको ऑफिस है वो मुंबई में है, तो मुंबई ऑफिस कैन नॉट टेक ऑल द डिसीजन एवरी टाइम. ओवर बर्डन हो जाएंगे वो लोग वहाँ पे. तो वो लोग क्या करेंगे, जो डिसीजंस होंगे, डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर ब्रांच के पास, राइट. सो अगेन डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, नेचर ऑफ द वर्क के ऊपर, कि whether that principle you can apply that principle or not. Now next is journal guidelines. So journal guidelines, they are basically the principles of management act as a guideline for decision making and action, right? You all will agree on that now. So they do not provide any ready made solutions. See, journal guidelines doesn't mean that they are ready made solutions. They do not provide ready made solutions to all managerial problems, right? आपको एक गाइडेंस मिल रही है, बट ऐसा नहीं बोला कहीं पे कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम होगी तो इसका ये सॉल्यूशन होगा. मैनेजर को अपना माइंड यूज़ करना है, कहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल जो है वो यूज़ हो रहा है, उसको वो वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन, उसको एक हेल्प मिल जाएगी. बट अल्टीमेटली आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये जो है आपका एक रेडीमेड सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. बिकॉज रीज़न बिंग रियल जो बिजनेस सिचुएशन होंगी दैट विल वेरी, राइट. आपका जो आज आप जो बुक्स में पढ़ रहे हो और जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है वो डिफरेंट होती है, और रिजल्ट भी ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा आपका. पीपल टू पीपल भी वेरी करेगा. नेचर, ह्यूमन नेचर इज़ कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन नेचर इज़ डिफरेंट. तो आप जहाँ पे भी प्रिंसिपल आप सोचो कि यहाँ पे अगर ये रिजल्ट आया और वहाँ पे भी सेम, दूसरे एक्स में एक्स जगह पे ये रिजल्ट आया और बी जगह में भी ये रिजल्ट आ जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट. फॉर एग्जाम्पल यूनिटी ऑफ कमांड जो है आपका क्या बोलता है, आपका यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि आपको एक प्रिंसिपल, अगेन दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फोल, which means that one employee should get order from one superior or one boss only, right? One employee should get order from one superior or one boss only. So when you apply this principle unity of command, what will happen? This principle will improve the efficiency level of the employee, right? एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिल रहा है और दूसरी जगह पे एक एम्प्लॉय को मोर देन वन बॉस जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं. व्हाट विल हैपन दोनों सिचुएशन में? जिसके पास सिर्फ एक ही बॉस है, एक ही सुपरवाइजर है ऑर्डर देने के लिए, उसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली विल इंक्रीज. एंड जहाँ पे दो बॉसेज हैं जो ऑर्डर एक ही पर्सन को दे रहे हैं, वहाँ पे एफिशिएंसी विल डेफिनेटली रिड्यूस. सो अगेन जनरल गाइडलाइन है, आप इसको फॉलो कर रहे हो, आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है. Or we can take one more example, like for example maybe some employees caught for not doing the things properly or not doing the work properly. So as per the HR policy, the manager can punish that person, right? So ये भी जनरल गाइडलाइंस ही तो है, जो भी पॉलिसी में है अकॉर्डिंग टू दैट ही कैन पनिश. उससे बाहर जाके तो आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हो. तो अगेन दीज आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स. Now next is formed by practice and experimentation. Formed by practice and experimentation. Now formed by practice and experimentation means the principles of management are formed only after thorough research work. ऐसा नहीं है कि बस सुबह उठे और माइंड में आया चलो एक प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल आज बना देते हैं. No, it's not like that. They are not developed automatically, right? So like for example, division of work. Again,
Division of work, delegation of authority are the examples of principles of management which were framed after experiencing the benefit of dividing work among employees. आपने काम डिवाइड किया एम्प्लॉयज के बीच में, आपने देखा कि काम डिवाइड करने से जो है काम वो जल्दी हो रहा है. लाइक घर में भी जैसे होता है, जब हम डिवाइड करके काम करते हैं तो वो जल्दी होता है. तो वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ, राइट. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एम्प्लॉयज के ऊपर, वहां से जब उनको रिजल्ट मिला उसके बाद ये प्रिंसिपल उन्होंने फॉर्म किया. दैट इज वाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. नेक्स्ट इज flexible. Flexible, like management principles, they are flexible in nature, they are not rigid. So basically these principles, children, they are providing tools to the manager, right? For example, division of work. अब किसको कितना काम देना है, that manager will decide. Obviously किसको इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को काम देना है या कोई काम जो है वो ग्रुप में करवाना है, that again he will take the call, the manager will take the call. So these principles are flexible. ऐसा नहीं है कि आपने बोला डिवीजन ऑफ वर्क है अगर फॉर्म के अंदर तो मतलब सारा काम बांट दो. हो सकता है कुछ काम जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल ही कर सकते हैं, तो आप उनको दोगे. जो काम ग्रुप में कराना है वो ग्रुप में करवाओगे, राइट. मेनली बिहेवियर. सी, वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स. we means managers are they are dealing with human beings. So these principles, children, basically provide a better understanding of the relationship between human and material resources, right? So management principles, they basically provide better understanding of the relationship between human and material resources. Like for example, to achieve maximum productivity, right? अगर आपको अपना जो है workforce से productivity जो है increase करनी है, so the factory layout must ensure smooth movement of materials and workforce. Like for example, जो है आपका जो फैक्ट्री है वो गेट नंबर 1 के पास है, और आप जो है वो जो ट्रक जो सामान लेके रॉ मटेरियल लेके आ रहा है वो जो है वो गेट नंबर 5 के पास है. तो ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल है फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए कितना लंबा एक देखो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. उससे क्या होगा, ऑलरेडी जो है जो आपका जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो वर्कर्स होंगे, दे विल गेट टायर्ड. इससे बेटर क्या है, जहाँ पे आपका फैक्ट्री है वहीं पे जो है वो, जहाँ पे ट्रक जो है ऑफलोड करने के लिए आएगा वो वहीं पे आना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैक्ट्री गेट नंबर 1 के पास है और जो ट्रक आ रहा है, जो आपका कार्गो आ रहा है ऑफलोड होने के लिए गेट नंबर 5 के पास आ रहा है. सो दिस इज मेनली बिहेवियर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज मीन्स मैंने ठंडा पानी पिया, मेरा गला खराब हो गया. कॉज क्या था, ठंडा पानी पीना. इफेक्ट क्या हुआ, मेरा गला खराब हो गया. सेम वे व्हेन यू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क जो है कॉज है. इफेक्ट क्या हुआ, जो इफिशियंसी थी वो इंक्रीज हुई, राइट. जो वेस्टेज थी वो कम हो गई. तो ये उसका इफेक्ट हुआ, राइट. अगर फॉर एग्जांपल यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड से 1 एम्प्लॉय 1 बॉस. कॉज क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड. अगर आपने एक से ज़्यादा बॉसेस जो हैं एक एम्प्लॉय के ऊपर रख दिया, जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मल्टीपल कमांड्स दे रहे हैं उसको, व्हाट विल हैपन, द पर्सन विल गेट कंफ्यूज, द एम्प्लॉय विल गेट कंफ्यूज. तो यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ, कंफ्यूजन. और कॉज क्या था, मल्टीपल कमांड्स, राइट. So this was the cause and effect relationship. Now next is contingent. Contingent means basically management principles are not absolute in nature, right? They are not absolute in nature. Like for example, fair remuneration. Fair remuneration means giving fair salaries, remuneration to the employees. But अब डिपेंड करता है कि उस फर्म की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो कैपेसिटी कैसी है, राइट. उसके पास पैसा है देने के लिए कि नहीं है. तो फेयर रेम्यूनरेशन वहाँ पे, जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा है उसके लिए हो सकता है कि उस जो ब्रैकेट की जो सैलरी है वो फेयर है. बट मे बी जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अभी फंड्स नहीं है, मे बी उसके लिए वो जो है वो उसके बजट से बाहर जा रही है. तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दे बेसिकली दे गिव गाइडलाइंस. ओके, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन हाउ द मैनेजर शुड बिहेव. So this is contingent. Now next is significance of principles of management. Significance of principles of management. The first point is providing managers with useful insights into reality. Providing managers with useful insights into reality.
Like children principles of management provides they provide guidelines to solve similar kind of problem. Like जो आपने past में अगर कुछ problem manager ने face करी है तो these principles will provide guidelines कि हाँ ऐसा हुआ था तो ऐसा करना चाहिए, right? Say for example a manager can leave routine decisions to his subordinates and he can focus on main important issues. Like for example bad debts का case होता है. अब बैड डेट्स अगर 2% इज ओके फॉर द ऑर्गेनाइजेशन तो वो 2% जो है वो उसके जो फाइनेंस मैनेजर और उसके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा कि ठीक है अगर 2% तक होंगे बैड डेट्स तो यू कैन फॉलो ऑन दैट. बट अगर 2% से ऊपर होता है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ जाती है. इन दैट केस आप जो है मैनेजर को जो है लूप में लोगे. सो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट मीन्स आप जो है ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग. These principles they are actually increasing the managerial efficiency, right? They are basically increasing the managerial efficiency. These principles like they are enabling the managers to learn from the past mistake और उसको repeat नहीं करो, right? तो ये है इसका first point, providing managers with useful insights into reality. Now the next point is scientific decision. Scientific decision means जो भी आप प्रिंसिपल जो हैं ऑब्वियसली जो मैनेजर सपोज फॉर एग्जांपल आपने मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, राइट? आपने मार्केट में जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि आप रात को सुबह उठे और आपने बोला कि ठीक है अब तो मैं आज ये नया वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँगा. ऑब्वियससली आपने उसके लिए सर्वेस किए होंगे, क्वेश्चनियर्स आपने बनाए होंगे, आपने फीडबैक लिया होगा, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेक किया होगा, आपने कॉम्पिटिटर्स का जो प्राइसिंग होगी स्ट्रैटेजी होगी उसके ऊपर भी आपने जो अपना वर्क किया होगा. सो दीज प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेसिकली जो है आपको ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स के ऊपर बेस होता है. ऐसा नहीं कि आपने बस खुद भी माइंड में आपको एक पर्सनल आपको कुछ थॉट आया और आपको उसके ऊपर जो है डिसीजन लिया. इट्स नॉट लाइक दैट. बेस पूरा का पूरा फैक्ट होता है. मैनेजर्स के पास पूरा उसका ब्लैक एंड वाइट में उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है. देन ओनली दे कैन टेक डिसीजन, राइट? क्योंकि अगर एक डिसीजन फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग एज ए मार्केटिंग हेड, राइट? आपने कॉल ले लिया कि ठीक है ये जो प्रोडक्ट है इसको इस तरह से हम जो है इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. अब अगर आपने वो कॉल लिया बिना किसी आपने तो अपना जो है वर्किंग के बिना आपने किसी बिना फैक्ट्स चेक करे आपने वो डिसीजन ले लिया, कल को फेल हो जाता है अगर, हु इज रिस्पॉन्सिबल? ऑब्वियसली द मार्केटिंग हेड इज रिस्पॉन्सिबल. सो साइंटिफिक जो उनकी जो डिसीजंस होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, राइट? सो दिस इज साइंटिफिक डिसीजंस. Next is meeting changing environment requirements. Meeting changing environment requirements. So children, in this point basically management provides opportunities to manager to modify principles to meet the need of dynamic business environment, right? आपको अगर लग रहा है कि changes चाहिए आपको working के अंदर तो आप उसमें easily you can change because these principles are not rigid, they are flexible. Like for example in earlier times, like अगर आपको याद हो अगर कभी पढ़ा हो, business enterprises used specialization within the organization, but आज की डेट में we have BPOs and KPOs, right? The organizations who provide security services to other organizations, like हमारे स्कूल का एग्जाम्पल आप देखो, स्काईलाइन की बसेस हम लोगों ने जो है वो आउटसोर्स करी हुई हैं. तो अर्लियर ऐसा नहीं होता था. अर्लियर दे लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, एंटरप्राइजेस होती थी, दे यूज देयर ओन स्पेशलाइजेशन within the organization, but now scenario is different, right? We have BPOs, we have KPOs. So this is meeting changing environment requirements. Next is fulfilling social responsibility. Fulfilling social responsibility, again we are using resources from the society. Business is an organ of the society and makes use of various resources of the society. So it must do something in the interest of the society. Like it should include social values like providing equal opportunities, right? By using environmental friendly goods, by using environmental friendly production techniques, or maybe by producing quality goods. So this way the firms, organizations, they can fulfill social responsibilities. Now next is management training, education and research. Management training, education and research, basically the management has become a profession now, right? Management has become a profession which requires obviously professional degrees from management institutions. And
you must agree that the various case studies from real-time businesses are used not only to teach and explain the principles of management to students, but also they are used by the management gurus for their research and development work, right? Like for example, Mumbai Dhaba Walas, very famous, right? उनको MBA programs में ऐड किया हुआ है, उनसे बच्चे सीखते हैं. ऐसी कई मूवीज भी हैं जो आपके MBA प्रोग्राम्स में जो है उसके ऊपर उनकी केस स्टडीज बनी हुई हैं. So this is management training, education and research. Now next is father of journal administration, Henry Fayol. We'll start with the 14 principles of Henry Fayol. First is division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to the general interest, remuneration. Eighth is centralization and decentralization. Ninth is talent chain. 10th is order. 11th stability. 11th is equity. 12th is stability of tenure of personnel. 13th is initiative. 14th is esprit de corps. So let's start. Now the first is division of work. When employee are specialized, output can increase because they become increasingly skilled and efficient. Obviously, when you divide the work according to the specialization or qualification or experience of the individual, after doing that work again and again, they become more skilled. राइट उनको उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है और उससे क्या होगा, देयर एफिशिएंसी विल इंक्रीज एंड वेस्टेज विल बी रिड्यूस. वी कैन से दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वहाँ पे हो जाएगा जब आप काम को प्रॉपर जो है डिवाइड कर देते हो. सो दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता. सो व्हेन यू डिवाइड द वर्क, आपने जो जिसका स्पेशलाइजेशन है, इफ समबडी इज MBA फिनेंस, आप उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब दो. इफ समबडी इज हैविंग डिग्री इन मार्केटिंग, तो उसको आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब देना चाहिए. इफ समबडी इज लाइक स्पेशलाइज्ड इन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको वहाँ पे आप प्लेस करें. सो दिस इज डिविजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट इज authority and responsibility. Managers must have the authority to give orders, but they must also keep in mind that with authority comes responsibility. Right? Authority means power and responsibility means obligation. जब आप किसी को पावर दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्लास मॉनिटर जो है उसको आपने बोला कि यू हैव टू मेंटेन डेकोरम इन द क्लासरूम, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बट अथॉरिटी तो दी नहीं है. तो हाउ द मॉनिटर विल मैनेज? ऑब्वियसली क्लास में जो है क्योस रहेगा, आप वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज आपने उसको अथॉरिटी, आपने उसको पावर नहीं दी कि अगर कोई बात कर रहा है तो उसका नाम लिखो या उसको जो है आप पनिश करो. आपने उसको ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं दी है. सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ गो हैंड इन हैंड. अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, देन यू हैव टू गिव अथॉरिटी ऑल्सो. लाइक there should be proper balance between authority and responsibility. मैंने जो है किसी काम का अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, राइट, तो मुझे उसकी अथॉरिटी भी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ सेल्स मैनेजर मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि यू हैव टू इंक्रीज दी सेल्स बाय 20%, राइट. मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है बट मैंने अथॉरिटी नहीं दी है कि ओके फाइन, अगर कोई क्लाइंट जो है वो 5% डिस्काउंट मांग रहा है, यू कैन ईजिली गिव दैट 5% डिस्काउंट टू द कस्टमर. मैंने उसको कोई अथॉरिटी नहीं दी है, राइट. उससे क्या होगा, जो है क्लाइंट वो नहीं आएंगे, राइट. जो मैंने उसको काम दिया, जो टास्क दिया है, दैट टास्क विल नॉट बी अचीव. ओके, सेम वे वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक. आपने किसी को जो है आपने किसी वर्कर को बोला कि ये जो है इतना 100 यूनिट्स यू हैव टू प्रोड्यूस, राइट. आपने उसको टारगेट दे दिया 100 यूनिट्स यू हैव टू प्रोड्यूस, बट आपने टूल्स का एक्सेस उसको नहीं दिया. विदाउट टूल्स, विदाउट यूजिंग टूल्स और मशीन्स, हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स. तो आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बट अथॉरिटी नहीं दी है. सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस between authority and responsibility. Now next is discipline. Discipline is very important. Discipline means respect for the rules and regulations of the organization. आपने जो रूल सेट किए हैं, आपने जो गाइडलाइंस जो हैं, जो रूल सेट किए हैं, everybody should follow that. Like स्कूल में आपने देखा डिसिप्लिन is there, right? In offices also discipline is very important. अगर डिसिप्लिन नहीं है
right? So you cannot achieve your goals, that is for sure. So discipline is very important. Next is unity of command. Unity of command, as I said, one employee, one boss. So employee should have only one direct supervisor who will be responsible for all actions that are taken by the subordinate. So if one employee is taking order or instruction from one boss, that person will be sorted, right? आपके पास जो है order instruction आपके पास एक जगह से आ रहे हैं. आप for example आपको जो है आपके सेल्स मैनेजर ने बोला है कि आप जो है सेल्स इंक्रीज करो, और वहीं प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है गो स्लो, वी डोंट हैव रॉ मटेरियल, एनफ रॉ मटेरियल. आप क्या करोगे? यू विल गेट कंफ्यूज कि मेरा मैनेजर सेल्स मैनेजर बोल रहा है एक तरफ से कि आप सेल्स इंक्रीज करो, एंड प्रोडक्शन मैनेजर ऑन अदर हैंड इज सेइंग कि आप स्लो चलो बिकॉज वी डोंट हैव रॉ मटेरियल. So one employee should get order from one boss only. This is unity of command. Next is unity of direction. Now unity of direction is one head and one plan. Like you can see in this diagram, suppose for example the company is dealing into cars also and in bikes also. So obviously अगर यहाँ पे आप एक ही head रखोगे तो confusion होगा, वो दोनों जगह नहीं manage कर सकता. So it's better to have one head for cars unit and one head for bikes unit. So one head and one plan for a group of activities with same objective. All activities which have the same objective must be directed by one manager and he must use one plan. This is unity of direction. Now next is subordination of individual interest to the general interest. Now the interest of the one employee, the interest of the interest of the one employee should not be allowed to become more important than those of the group. This includes managers. I am working as a manager in ABC company. मेरा जो मेरे जो sister है, she is into, like my company is into producing leather bags, right? Leather bags obviously मुझे raw material leather चाहिए, and my sister is also dealing in the raw material of leather bag, right? Without surveying the market, right? मैंने किसी से बात नहीं करी, मैंने कोई वेंडर्स की कोटेशन चेक नहीं करी, सीधा उठा के मुझे रॉ मटेरियल का ऑर्डर चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए था, मैंने वो ऑर्डर उठा के अपनी सिस्टर की कंपनी को दे दिया, राइट? उसके मार्केट रेट से ज़्यादा रेट थे, तब भी मैंने उसको वो दे दिया. क्या किया? मतलब मैंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है कंपनी के इंटरेस्ट से ऊपर रखा. So there should be subordination of individual interest to the general interest. means जो कंपनी का, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए as compared to individual interest, right? We can take one more example. Like for example, okay, let's take one more example. Like for example, there is a manager working in any organization and he is very efficient manager. So that manager, he demands for higher salary. So company may not agree to his demands. Reason being, as it will harm the interest of all other employees. आपने एक मैनेजर को अगर सैलरी दे दी क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, तो what about rest of the managers? They will also demand. अगर आप नहीं देते हो, that means you are biased, right? आप जो है आप उनके साथ fair treatment नहीं कर रहे हो. So subordination of individual interest to general interest is basically the interest of the organization should take priority over the interest of any one individual employee. Okay. So next is remuneration. Now employee satisfaction depends on fair remuneration for everyone. This includes financial and non-financial compensation. See, all the organizations must treat all employees equal and fair in terms of compensation and growth opportunities, right? अगर आप किसी से ओवर टाइम करा रहे हो, you should pay that person, right? अगर आपने सिर्फ बोला कि ठीक है आप 6 o'clock तक तो आपके ऑफिस आवर्स हैं, that person is working till 10 o'clock, बट आप उसे कुछ भी नहीं दे रहे हो उसके, तो क्या होगा? उसके माइंड में आएगा कि मुझे जो है ये जॉब कहीं और जॉब देखनी चाहिए, राइट? मुझे जो है जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो फेयर नहीं मिल रहा है, ओके? वो जो बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग होगी वो उसको नहीं आएगी उस कंपनी के अंदर. सो रेम्यूनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो भी आप पे कर रहे हो, the organization must ensure a reasonable standard of living, right? The organization must ensure a reasonable standard of living. Now next is centralization and decentralization. So centralization means concentration of decision making authority
and decentralization means dispersal of decision making authority among more than one person. Like we already discussed about this रिलायंस कंपनी. रिलायंस कंपनी जो है एज कम्पेयर टू अ स्मॉल कंपनी, वहाँ पे जो है डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और स्मॉल कंपनी में द पावर्स विल be with one person only. The person will be taking care of meetings or hiring personals or fixing the price, etc., etc. Whereas in big companies like Reliance, each department is headed by a specialized personnel, right, who has the authority to take decisions related to his or her department. So this is centralization and decentralization. Next is scalar chain. Now this is important. 2 marks में भी ये क्वेश्चन बच्चों आ जाता है. So scalar chain employees should be aware where they stand in the organization's hierarchy or channel chain of command. Right, this is hierarchy. Top boss is A, then B, C, D, E, F, L, M, N, O, P. Now in this figure, the scalar chain in the an organization is represented by 2 ladders. ये आपकी ladders हैं, A to F and A to P. एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम एफ टू पी, अगर एफ को पी से कुछ बात करनी है, हैज़ टू फ्लो अपवर्ड टू ए, मीन्स एफ पी से डायरेक्ट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात नहीं कर सकता. एफ विल कम्युनिकेट टू ई, ई विल पास टू डी, डी विल पास दैट इंफॉर्मेशन टू सी, देन सी टू बी टू ए टू एल टू एम टू एन टू ओ टू पी. सो इट विल टेक ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम. ऑब्वियसली आपका देखो एफ से पूरा ए से पूरा पी के पास गया, टाइम लग रहा है. सो अगर इन केस कुछ इमरजेंसी है, उसमें हम क्या करते हैं, एक नया हम लोग जो है गैंग प्लैंक जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं. सी, in order to minimize the delay involved in communication, a gangplank between F and P may be created as shown by the dotted line. But normal circumstances में gangplank is not allowed, right? ये आपका normal practice में नहीं होगा. जब कुछ बहुत ही complicated, बहुत critical अगर कुछ situation आती है, उस केस में आप gangplank use कर सकते हो. Otherwise you have to follow this hierarchy. अगर E को O से कुछ बात करनी है, again he has to go upward, D, C, B, A, then A L को बोलेगा, L, P, F, M will pass to N, then N will pass to O. सेम भी O को अगर कुछ रिस्पॉन्ड करना है, O will pass to N, N will pass to M, then M will pass to L, A, B, C, D, E. Right? This is scalar chain, means they have to follow proper hierarchy or chain of command. Now next is order. Order means right person at right place. A place for everything and everything in its place. The right man in the right place. There should be an order for material, things and people in the organization. See, यहाँ पे रेसिंग ट्रैक है, कार्स आके रुकी हैं. अब देखो कोई टायर चेंज कर रहा है, कोई फ्यूल करेगा, फिल करेगा, कोई इंजन में ऑयलिंग करेगा. अगर जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल इसके हाथ में मेरे को टायर दिख रहा है, राइट, आपको भी दिख रहा होगा. अगर ये, इसका मतलब क्या है कि ये टायर जो है फिट करने में ही इज एक्सपर्ट. अगर आप इससे ये काम लेके किसी और को दे दो, ये जो फ्यूल फिल कर रहा है ये काम किसी और को दे दो, व्हाट विल हैपन, इनको नहीं पता, राइट, इनको नहीं पता कैसे काम करना है, तो क्या होगा, क्योस क्रिएट हो जाएगा. सो ऑर्डर से दैट राइट पर्सन एट राइट प्लेस एंड देयर शुड बी एन ऑर्डर फॉर मटेरियल थिंग्स ऑल्सो, जो जिसकी जगह है. अगर आपने वर्कशॉप में देखा हो, जब आप गाड़ी रिपेयर, कभी कार रिपेयर कराई हो, तो वहाँ पे आप देखो जो मैकेनिक होगा, टूल्स हमेशा उसके आसपास होंगे. वो गाड़ी के नीचे होता है और वो टूल्स जो होते हैं उसके आसपास होते हैं. ऐसा तो नहीं होता कि वो एक एक टूल लेने के लिए निकलता है बाहर, कार से नीचे से निकलता है, फिर शेल्फ से टूल लेता है, फिर आता है. सारा जो इसके इक्विपमेंट्स होंगे, टूल्स होंगे, वो उसके पास होंगे और उसके बाद वो अपना काम करता है, राइट. सो सेम वे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू हैव वैकेंसी फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वहाँ पे अगर आपने किसी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो आपका कैंडिडेट होगा, सपोज फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे आर्ट्स बैकग्राउंड, जिसको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है अकाउंट्स की, आपने उसको अगर वहाँ पे जॉब दे दी, व्हाट विल हैपन, टोटल डिजास्टर, राइट, टोटल फेलियर, वो काम ही नहीं कर पाएगा. तो वहाँ पे क्या होगी, वेस्टेज होगी. सो ऑर्डर फॉर थिंग इज कॉल्ड मटीरियल ऑर्डर एंड ऑर्डर फॉर पीपल इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर. मटीरियल ऑर्डर रेफर्स टू अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए. Social order refers to the selection of the right man in the right place, right? Right person at right place, that is again order. I hope this is clear. Now next is equity.
Managers should be fair to staff at all times, both maintaining discipline as necessary and acting with kindness where appropriate. Right? Equity means that managers should be fair and impartial while dealing with their subordinates. आप फेवर नहीं करो किसी को, लाइक ठीक है, आप अपना बायस नहीं होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स अ डे. अब एक जो है वर्कर जो है वो आपका रिलेटिव है और एक जो है वो आपका रिलेटिव नहीं है. अब उसने जो है जो आपका रिलेटिव नहीं है, ही हैज़ प्रोड्यूस 100 यूनिट्स एंड द वन हु इज़ योर रिलेटिव उसने 95 यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं और आपने दोनों को जो है सेम वेजेस जो हैं वो आपने पे करी हैं. दैट इज टोटली अनफेयर. वाई? जिसने 100 प्रोड्यूस करी उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, जिसने 95 प्रोड्यूस करी आपने उसको भी सेम रेट दे दिया. दैट मीन्स आप फेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो अपने स्टाफ के साथ. राइट? सो मैनेजर शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल वाइल डीलिंग विद देयर सबऑर्डिनेट्स. No worker should be unduly favored or punished. So this is the principle of equity. Now let's see what is next. Next is stability of tenure of personnel. Stability of tenure of personnel means आप जब employees को hire कर रहे हो, like managers should strive to minimize employee turnover. Personnel planning should be a priority. Stability of tenure of personnel means अगर employees आपकी firm को छोड़ के जा रहे हैं, that means you are under the scanner. राइट? आपकी जो फॉर्म है वो क्वेश्चन मार्क में है. इट्स नॉट गुड साइन. अगर आपकी जो आप इवन आप जब कभी न्यूज़पेपर देखोगे कुछ ऐसी एड्स आती हैं जिसमें एवरी 15 डेज में वो बोलते हैं हायरिंग हायरिंग हायरिंग. दैट मीन्स कि वहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पे वो लोग रिटेन नहीं कर पाते. यहाँ वो कोई भी रीज़न हो सकता है. मे बी द एनवायरनमेंट इज़ नॉट हेल्दी. राइट? वहाँ पे जो बॉस है ही इज़ वेरी रूड. कुछ भी रीज़न हो सकता है. तो वो जो साइन है वो गुड साइन नहीं होते रेपुटेशन के लिए, किसी भी फर्म की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो मैनेजर का क्या रोल होता है यहाँ पे, एचआर मैनेजर्स का क्या रोल होता है, टू रिटेन द एम्प्लॉयज. राइट? टू रिटेन द गुड एम्प्लॉयज. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के बार बार जा रहे हैं, इवन फायरिंग इज ऑल्सो नॉट गुड. अगर आप बहुत बार फायरिंग कर रहे हो तब भी मैनेजर से क्वेश्चन मार्क पूछा जा सकता है. और अगर एम्प्लॉयज खुद छोड़ के जा रहे हैं, अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट गुड साइन कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं. समथिंग इज रॉन्ग इन दी ऑर्गेनाइजेशन. एनवायरमेंट में भी हो सकता है फॉर्म का ठीक नहीं है. So this is stability of tenure of personnel. Now next is initiative. Employees should be given the necessary level of freedom to create and carry out plans. Employees should be given the necessary level of freedom to create and carry out plans. Initiative means आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज जो हैं आज की डेट में, लाइक when we talk about Google और Apple, यंग जो जनरेशन है उनको वो कितना जो है प्रमोट किया जाता है. राइट? उनको इनिशिएटिव बोला जाता है कि यू शुड पार्टिसिपेट इन द डे टू डे एक्टिविटीज़. सजेशंस जो है उनसे डिमांड की जाती हैं. राइट? तो इनिशिएटिव इज बेसिकली employees should be given the necessary level of freedom to create and carry out plans, and this will improve the productivity also. Right? This will improve the productivity also and decrease the cost of production also. जितना ज़्यादा जो स्टाफ होगा वो इनिशिएटिव जो है वो करेगा अपने काम को लेकर, राइट? वो जितना ज़्यादा वो आगे आएगा, सजेशंस देगा, ऑब्वियसली जो वेस्टेज हो रही है वो रिड्यूस होगी, जो एफिशिएंसी है दैट विल इंक्रीज. लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर में गिव सजेशंस टू मेक मे बी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. बोल सकता है कि हाँ सेल्स मैनेजर एडवाइस कर सकता है, बट डेफिनेटली वो जो है सिर्फ सजेशन ही देगा, बट ही कैन नॉट चेंज द प्राइसिंग पॉलिसी. उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है. राइट? सो एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट प्लान. उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका जो है वो इंक्रीज होगा, उनका मोरल बूस्ट होगा. सो इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन, एस्पिरिट द कॉर्प्स. Organization should strive to promote team spirit and unity. Means management should promote a team spirit of unity and harmony among employees. I must be replaced. I must be replaced by we to give workers the sense of belongingness. Right? Teamwork should be promoted for effective coordination and realization of organizational goals. So teamwork is always important.
Like for example, if management formulates plans and policies after discussing with the employees, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो उनको फीलिंग आएगी, राइट, उससे क्या होगा, उनका जो कॉन्फिडेंस है दैट विल इंक्रीज, राइट. सो चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू विल बी able to understand all the principles of Henry Fayol. And now the next part, that is scientific principles, we will cover in the next video. And you will also agree that these 14 principles are applicable even in our day-to-day activities also, children. Like in the family, if you see in the family, like the concentration of power, जो power होगी like related to budgets and all, जो critical issues होंगे वो घर के head of the family के पास होते हैं. Same way कुछ powers will be with mothers, right, ठीक है. And each member will work individually, right. And लेकिन उनका जो मेन गोल होगा वो क्या होगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली. हेड ऑफ द फैमिली में डिस्कस विद अदर मेंबर्स ऑल्सो upon crucial matters. So principles of management, just go through these principles. In case you find any problem, right, you can message me, and next class may we will cover the balance part of this chapter, that is scientific principles of management. And till then, take care, and health and happiness to you and your dear ones. Take care. Bye.